In this video, we are going to see the continuation of exercise 3.2a. चैप्टर इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. लास्ट वीडियो में हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देखा था, तो उसी का कंटिन्यूशन है ये एक्सरसाइज 3.2a. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, what it is integral I is equal to integrate with respect to x. So integral I is equal to x raised to n minus 1 divided by root of 1 plus 4 into x raised to n. Okay. अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटीग्रेशन बहुत अच्छा आने के लिए आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला अच्छे से पता होने चाहिए. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन. तो एक्स रेज टू एन माइनस वन का टर्म उसके डेरिवेटिव में है. सो आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. व्हाट इज इंटीग्रल आई हियर? इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन माइनस वन, 1 plus 4 into x raised to n. So put here x raised to n is equal to t. Put here x raised to n is equal to t. Now differentiate. So after derivative, what is the derivative here? x raised to n का derivative क्या आ जाएगा? n into x raised to n minus 1 into dx. It is equal to dt. It is equal to dt. Hence, what is the numerator? X into x raised to n minus 1 into dx. X raised to n minus 1 into dx. So x raised to n minus 1 into dx is what? dt divided by n. तो हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे ये न्यूमरेटर एडजस्ट करना है. सो इट इज x raised to n minus 1 into dx is equal to dt divided by n. तो आपका पूरा का पूरा x किस में कन्वर्ट हो गया? dt में कन्वर्ट हो गया. Hence integral I becomes integral I is equal to x raised to n minus 1 into dx. x raised to n minus 1 into dx क्या हो गया यहाँ पे? dt divided by 1. Sorry, dt divided by n. न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो हियर यू कैन राइट 1 divided by root of 1 plus 4 into x raised to n. And what is x raised to n? It is t. It is t. So it is equal to, now here you can take out 1 upon n scalar common. 1 upon n taken common inside the integral. See, I am writing here again this step. See, 1 upon 1 plus 4t into dt divided by n. So I have taken out here 1 upon n common. Integral of 1 upon 1 plus 4t. So it is 1 plus 4t raised to half. Raised to half. So it is equal to 1 upon n 1 plus 4t raised to minus 1 by 2. 1 plus 4t raised to minus 1 by 2. So we will apply here formula ax plus b raised to n. So जो x raised to n का फॉर्मूला है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सी, आपके टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला है ax प्लस बी रेज टू n. तो ये किसके ऊपर से आता है? x रेज टू n के ही ऊपर से आता है. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. और जहाँ पे ax प्लस बी का फॉर्मूला है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. So what is the integration here? 1 upon n into ax plus b raised to n plus 1. So it is 1 plus 4t raised to minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 into coefficient of t. जैसे हम यहाँ पे coefficient of x से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, here it is whole integral is converted in terms of t. तो यहाँ पे t का coefficient क्या है? 4. तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4 से प्लस c. So it is equal to 1 upon n 1 plus 4t minus 1 by 2. 1 minus half कितना हो गया? 1 by 2 divided by 1 by 2 into 4 plus c. So it is equal to 1 upon n into 2 2s are 4. तो यहाँ पे 2 what is remaining here? 2. So 1 plus 4t raised to half divided by 2 plus c. So what is the final answer? What is the final answer? 1 upon 2 into n 1 plus 4t. And what is the value of t? T is equal to x raised to n. So put here x raised to n raised to half plus c. This is your required final answer. Okay, कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे x raised to n को t पुट किया. We have find the derivative. x raised to n minus 1 into dx को हमने dt by n में कन्वर्ट कर दिया. फिर इंटीग्रल आई जो है वो हमारा पूरा x से किस में कन्वर्ट हो गया? t में कन्वर्ट हो गया. सो इट इज़ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4t. एक्स रेज टू एन को हमने t पुट किया है यहाँ पे इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डी एक्स इज डी टी डिवाइडेड बाई एन.
सो इट इज़ इक्वल टू 1/n 1 + 4t रेज टू हाफ. ये हाफ अगर न्यूमरेटर में चला गया तो माइनस हाफ. अप्लाई हियर x रेज टू n फॉर्मूला, x रेज टू n + 1/n + 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t. यहाँ पे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t. ओके, एंड एट द लास्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. x रेज टू 5 इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो ये थोड़े स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं. तो ये टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे रूट में टर्म दिया होगा आपको उसको t पुट करना है. जो भी यहाँ पे रूट में दिया होगा उसको आपको t पुट करना है, और रूट के बाहर का जो टर्म है उसको इसी टर्म में कन्वर्ट करना है. तो x रेज टू 5 से अगर मैं यहाँ पे t इसको पुट कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर रही हूँ तो डेरिवेटिव कौन से टर्म में आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. सो x इंटू डी एक्स, आई रिक्वायर हियर x इंटू डी एक्स. तो अगर मुझे यहाँ पे x चाहिए तो ये x रेज टू 5 में से एक x मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा. तो बाकी क्या बच गया यहाँ पे? x रेज टू 4. और x रेज टू 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? x स्क्वायर का स्क्वायर. सो देखो, आई एम राइटिंग स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. So integral I is equal to, see how I am writing this x raised to 5, x raised to 4 into x into root of a square plus x square into dx. It is equal to, for this x raised to 4 you can write x square square into, ये जो x raised to 4 है इसका ये टर्म हो गया, into मैं यहाँ देखो यहाँ पे ये रूट लिख रही हूँ a square plus x square into x into dx. x इंटू डी एक्स. मैंने बस ये x यहाँ पे एट द लास्ट लिख दिया. यहाँ पे एंड में मैंने x इंटू डी एक्स लिख दिया, x रेज टू 4 लिख दिया, x स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे ये रूट एज इट इज. नाउ इसके आगे पुट ये जो रूट का टर्म है, पुट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. पुट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. इफ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, a स्क्वायर क्या हो गया? कांस्टेंट. सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 प्लस 2x into dx, it is equal to dt. So it is what we require, x into dx का वैल्यू चाहिए, तो x into dx क्या हो जाएगा? dt divided by 2. So x into dx is equal to dt divided by 2. ये तो 0 तो चला गया. x into dx is equal to dt divided by 2. Now we will write the integral I. Now अगर आप यहाँ पे देखोगे, see what we have substituted, a square plus x square, a square plus x square is equal to t. वी रिक्वायर हियर वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पे तो हम टी पुट कर देंगे, लेकिन हमें अगर पूरा का पूरा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो फ्रॉम दिस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस एक्स स्क्वायर. सो इंटीग्रल आई हो जाएगा आपका टी माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया टी माइनस ए स्क्वायर रेज टू 2. देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया टी माइनस ए स्क्वायर रेज टू 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? रूट टी. एक्स इंटू डी एक्स डी टी डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो पूरा का पूरा आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया टी के टर्म्स में. नाउ इफ़ यू सी ये 1/2 हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं. वी कैन टेक आउट द स्केलर 1/2 आउटसाइड. ओके, सो 1/2 टेकन आउटसाइड. टी माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू 4 इंटू रूट टी इंटू डी टी. सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू रूट टी. अभी रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी रेज टू हाफ. सो टी स्क्वायर इंटू, सी हाउ आई एम राइटिंग, टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू हाफ, मिडल साइन माइनस. हर एक टर्म को आपको क्या करना है? रूट टी से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया टी स्क्वायर इंटू रूट टी मीन्स व्हाट? रूट टी मतलब क्या हो जाता है? टी रेज टू हाफ. ओके, सो यहाँ पे मैंने टी रेज टू हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है? माइनस ऑफ 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू टी रेज टू हाफ, टी इंटू टी रेज टू हाफ प्लस ए रेज टू 4 इंटू टी रेज टू हाफ. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी. So it is equal to 1/2. Base is same, index get added. So t plus 1/2, t plus 1 sorry 2 plus 1/2. 2 plus 1/2 कितना हो गया? 2 2 4, 4 plus 1 5. So ये हो गया 5/2 माइनस
टू इंटू ए स्क्वायर, बेस इज सेम, इंडेक्स गेट एडेड, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 + 1 3, सो इट इज़ t⁻3/2 प्लस a⁴ इंटू t⁻1/2, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब वी विल फाइंड इंटीग्रेशन 1/2, t⁻5/2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x⁻n के हिसाब से, x⁻n + 1 अपॉन n + 1, सो t⁻5/2 + 1 कितना होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप साइड में कैलकुलेशन करके देख लो, अभी मुझे तो आता है लेकिन आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। 5/2 + 1, 2 × 1 कितना हो गया 2, सो इट इज़ 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ इक्वल टू 7/2, सो इट इज़ t⁻7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 माइनस 2 × a² तो आपका कांस्टेंट हो गया, t⁻3/2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अगेन x⁻n + 1, 3/2 + 1 होता है 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस a⁴, t⁻1/2 + 1, t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। नाउ इफ़ यू सी डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या कर सकते हैं हम, ये पूरे के पूरे 1/2 अगर हम यहाँ पे कॉमन निकाल लें, डिनोमिनेटर में अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज़ 1/1/2, 1/1/2 इंटू t⁻7/2 माइनस 2/5 इंटू a² इंटू t⁻5/2 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1/3 इंटू a⁴ इंटू t⁻3/2 plus c. Here 2 get cancelled and in the final answer, what is the final answer? Next step क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t का वैल्यू क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, a² + x², सो सब्स्टिट्यूट हियर a² + x² raised to 7/2 डिवाइडेड बाय 7, 2/5 इंटू a², t का वैल्यू है आपका a² + x² raised to 5/2 प्लस 1/3 इंटू a⁴, t का वैल्यू है a² + x² raised to 3/2 plus c. This is the required final answer for integral I. This is the required final answer for integral I. Okay. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है कि आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी रूट में टर्म रहेगा यहाँ पे उसको टी पुट करना है और बाकी का जो बाहर बच गया टर्म उसको एडजस्ट करना है इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सी इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/x इंटू x³ - 1। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे x³ - 1, x³ - 1, तो x³ का डेरिवेटिव क्या आता है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x³, 3x²। x³ का डेरिवेटिव क्या आता है 3x², तो मुझे क्या लगेगा x² के फॉर्म में x² इंटू dx के फॉर्म में कोई तो टर्म लगेगा। तो अगर ये टाइप का प्रॉब्लम है या फिर इन जनरल अगर कोई भी ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है, सपोज 1/x इंटू x⁻n - 1, तो इन दिस केस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x⁻n - 1। आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे 7 होता था तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, x⁻6 से। अगर यहाँ पे 8 होता था तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, x⁻7 से, तो 1 डिग्री लेस। तो एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x², 1 डिग्री कम से आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, इट इज इक्वल टू 1/x इंटू x³ - 1। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² से और डिवाइड भी कर रहे हैं x² से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x², बाकी का टर्म एज इट इज़ x एज इट इज़ x³ - 1 इंटू dx, सो इट इज़ इक्वल टू x² वैसे के वैसे रहने दो, x² इंटू x कितना हो गया x³ - 1 इंटू dx, x³ - 1 इंटू dx। ओके, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सी पुट हियर x³ इज इक्वल टू t, पुट हियर x³ इज इक्वल टू t। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप,
एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स इट इज़ इक्वल टू डी टी. सो x² इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर x² इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई 3. डी टी डिवाइडेड बाई 3. सो इंटीग्रल आई देखो अभी आपका क्या हो जाएगा व्हाट इज़ x² इंटू डी एक्स. x² इंटू डी एक्स आपका हो गया डी टी डिवाइडेड बाई 3. तो न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो गया आपका t, यहाँ पे आ गया t माइनस 1. ओके, और न्यूमरेटर में आ गया डी टी डिवाइडेड बाई 3. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं. तो अगर आप देखो यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू सी 1/3 टेकन कॉमन. ये 1/3 तो स्केलर तो हम बाहर निकाल लेंगे. इट इज़ इक्वल टू, सो इसको हम क्या कर सकते हैं t माइनस 1. तो यहाँ पे t माइनस 1 है तो इसको हम कर सकते हैं. देखो अभी हम हाउ आई एम राइटिंग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट t. सो अगर हम यहाँ पे t प्लस 1 माइनस टी अगर मैं इसको लिखती हूँ, देखो मैं अभी कैसे लिख रही हूँ. आई एम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग t डिवाइडेड बाय t इंटू t माइनस 1 dt. ओके, हाउ यू विल अरेंज द टर्म्स, हाउ यू विल अरेंज द टर्म्स. तो अगर हम यहाँ पे ये देखो, अगर ये t ऐसे कैसे रख दिया, t एज इट इज़. यहाँ पे अगर मैं ये दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेती हूँ, अगर आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा t माइनस 1. सी एडजस्टमेंट ऑफ टर्म्स करने पड़ेंगे आपके. आई हैव एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड t. तो t एज इट इज़ आ गया. माइनस साइन अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा t और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी. और स्प्लिट द न्यूमरेटर. अगर हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये t डिवाइडेड बाय t इंटू टी माइनस 1. t के साथ ये पूरा डिनोमिनेटर आ गया विद डी टी. यहाँ पे क्या हो जाएगा मिडल साइन माइनस. सेकेंड क्या आ जाएगा इंटीग्रल t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी. सो इट इज़ इक्वल टू टी गेट कैंसल, t माइनस 1 गेट कैंसल. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप का आंसर क्या आएगा देखो आपका. सो इट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू डी टी माइनस 1 अपॉन t इंटू डी टी. सो इट इज़ इक्वल टू 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c. एट द लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. सो log ऑफ मॉड ऑफ t क्या पुट किया है हमने, व्हाट इज़ t एक्स क्यूब. आपको चाहिए तो आप एक्स क्यूब माइनस 1 को भी t पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसका भी डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा. बस यहाँ पे आपको जब आप टर्म्स एडजस्ट करोगे प्लस और माइनस, तो ये आपको माइनस साइन कॉमन नहीं निकालना पड़ेगा. डायरेक्ट ये यहाँ से आपको यहाँ पे स्टेप आ जाएगा. अगर आप एक्स क्यूब माइनस 1 को t पुट कर सकते हो तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सो हियर इट इज़ log ऑफ t. t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एक्स क्यूब. सो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस log ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी. एंड व्हाट इज log a माइनस log b. सो इट इज log ऑफ a बाय b. सो इट इज एक्स क्यूब माइनस 1 divided by x cube plus c. This is your required final answer. Log of a minus log b is log of a by b. So x cube minus 1 divided by x cube plus c. This is your required final answer for this problem. Okay, ये problem का ये final answer होगी. Okay, now we will see the next problem. Integral I is equal to 1 upon x into log x into log of log x. 1 upon x into log x into log of log x. Okay, so I'm starting with the solution. So integral I is equal to 1 upon x into log x into log of log x. अगर आप टर्म्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, log of log x का डेरिवेटिव क्या आएगा. log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 upon log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज़ 1 upon x. तो 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x. तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये टर्म का डेरिवेटिव है. सो व्हाट वी विल डू,
पुट हियर पुट log of log x इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव निकालो, व्हाट इज द डेरिवेटिव? लॉग का डेरिवेटिव क्या है? 1 log x into derivative of log x। See there are two functions, so we will apply here chain rule। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 log x into derivative of log x 1 x into dx it is equal to dt। तो यहाँ पे आपका ये टर्म क्या हो गया? 1 x into log x into dx। 1 x into log x into dx is equal to dt। 1 x into log x into dx। Hence integral I will become c 1 ये तो log x क्या है? t है। तो ये कहाँ पे? ये टर्म डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1/t। log x का टर्म क्या हो गया आपका? 1/t इंटू 1 बाकी क्या बच गया? ये तो इसको तो हमने टी पुट कर दिया, इसको तो हमने टी पुट कर दिया, तो बाकी क्या बच गया? 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स इज डी टी। एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? 1/t का इंटीग्रेशन क्या है? 1/x किसका डेरिवेटिव है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग टी। सो इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। पुट द वैल्यू फॉर टी। सो इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। व्हाट इज टी? log of log x plus c। This is your required integral I। Okay, now we will see the next problem। integral I is equal to cos x divided by sin of x minus a। This is also a special type of problems। ये भी थोड़े special type के problems है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अगर यहाँ पे साइन और कॉस के आपको टर्म दिखाई दे रहे हैं, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन होता है, डिनोमिनेटर में कॉस है, या फिर ये जैसे अभी दिया गया है यहाँ पे x माइनस बी एक्स माइनस ए के टर्म्स में आपको अगर आगे टर्म्स दिख रहे हैं, तो क्या करना है आपको कि यू हैव टू एडजस्ट न्यूमरेटर का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर का जो एंगल है उसके टर्म्स में आपको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी हियर इंटीग्रल I इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए। तो अगर आप ये देखो, ये बाहर के तो साइन और कॉस ही होने चाहिए, तो अप्लाई दिस मेथड। ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होने चाहिए? साइन और कॉस के ही टर्म्स में होने चाहिए। तो हाउ आई विल राइट दिस x? आई हैव टू राइट दिस x इन टर्म्स ऑफ x माइनस ए। तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ अभी इसको, कॉस ऑफ x माइनस ए प्लस ए। देखो ये x माइनस ए भी कवर हो गया, और माइनस ए प्लस से अगर कैंसिल हो गया तो x ही आ जाएगा, तो उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए, इट इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी? फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, कॉस ऑफ a प्लस बी। सो इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी इज कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। सो इट इज इक्वल टू cos of x minus a into cos of a minus cos of first angle into cos of second angle minus sin of x minus a into sin a divided by sin of x minus a into dx divided by sin of x minus a into dx। okay, so it is equal to what? अगर हम अभी यहाँ पे न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स। मिडल साइन क्या हो जाएगा? माइनस। सेकेंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसके साथ ये टर्म ले लो, पहले हमने इसके साथ ये टर्म लिया, अभी इसके साथ ये टर्म ले लो। सो साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x minus a into dx। sin x minus a get cancelled, it is equal to, now if you see here cos a क्या है? कांस्टेंट है, तो cos ऑफ कांस्टेंट वैल्यू भी क्या आ जाएगा? इट इज़ अगेन अ रियल नंबर, ये भी कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो ये cos a को हम बाहर निकाल देंगे। देखो हमेशा x का ही वेरिएबल रहता है, x के ही टर्म्स आपके इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे, बाकी जितने भी टर्म्स रहते हैं वो बाहर रहते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो cos ऑफ a को हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? ये कॉट ऑफ x माइनस ए इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे साइन आ गया माइनस,
Again sin a is also a constant, sin a taken outside, what is remaining 1. सो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, cos a इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या है, log ऑफ mod ऑफ sin ऑफ x माइनस ए. सो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ sin ऑफ x माइनस ए माइनस sin a एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ए हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए, मिडल साइन माइनस एज इट इज, साइन ए एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर. ये भी एक स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम्स है. साइन और कॉस में यहाँ पे आपको टर्म्स रहेंगे, तो जो न्यूमरेटर का एंगल है वो डिनोमिनेटर के एंगल में एडजस्ट कर दो. तो यहाँ पे x माइनस ए प्लस ए हमने कर दिया, और जो भी फॉर्मूला रहेगा, अगर यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस भी होता था तो हम यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस भी अप्लाई कर देते. साइन ऑफ ए माइनस भी है तो न्यूमरेटर में साइन ऑफ ए माइनस भी अप्लाई कर दो. यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस भी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. स्प्लिट द न्यूमरेटर एंड देन टेक द इंटीग्रेशन. वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, बहुत ही ईजी और एकदम बहुत ईजीली उसका आंसर आ जाता है स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको सॉल्व करोगे. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. दिस इज़ ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर आपका एक्चुअली ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है. इसमें देखो अगर हम क्या कर सकते हैं सोल्यूशन. सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ हियर यू कैन डिवाइड. यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. तो हमने न्यूमरेटर को अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो न्यूमरेटर में टर्म आ गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स गेट कैंसल्ड. व्हाट इज़ रिमेनिंग, यहाँ तक पूरा इंटीग्रल आ जाएगा आपका. ये पूरा इंटीग्रल है. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो अभी सेक्स स्क्वायर एक्स. डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, ये जो कॉस एक्स है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया. यहाँ पे एक कॉस एक्स है, यहाँ पे 2 कॉस एक्स थे, तो ये कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज़ रिमेनिंग, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब क्या बाकी है यहाँ पे, टैन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बाकी है 2 इंटू डी एक्स. बस हो गया आपका आंसर. पुट tan x प्लस 2, पुट tan x प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू t. पुट tan x प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू t. tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 2 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गया. तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इट इज़ इक्वल टू डी टी. इट इज़ इक्वल टू डी टी. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया. एंड व्हाट इट इज, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका डी टी. टैन एक्स प्लस 2 का वैल्यू क्या हो गया टी. मीन्स इंटीग्रल आई इज इक्वल टू सी सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया आपका डी टी. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिखेंगे. टैन एक्स प्लस 2 को यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन टी. सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी डी टी इट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी. So log of mod of t, what is t? T is equal to tan of x plus 2 plus c. Integral I is equal to log of mod of tan of x plus 2 plus c. Okay, this is also a special type of problem. तो ये प्रॉब्लम्स आपको कब याद रहेंगे, जब आप इनको सॉल्व करोगे. आप इनको जब सॉल्व करोगे खुद ही 1 से 2 बार 2 से 3 बार जब आपके हाथ के नीचे से ये प्रॉब्लम जब जाएंगे तो ही आप इनको क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम के टाइम पे लिख सकते हो. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इंटीग्रल I इज इक्वल टू tan of 3x इंटू tan of 2x इंटू tan of x.
इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टाइप का प्रॉब्लम हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखे थे। ओके, तो इसका देखो हाईएस्ट एंगल क्या है, 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है। तो ये 3x को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस 3x एज 2x प्लस एक्स। सो देखो पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे इसका। सो इंटीग्रल आई क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x। ये टाइप का प्रॉब्लम हमने 11th स्टैंडर्ड में भी एक सॉल्व किया है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी वी नो दैट tan ऑफ 3x, tan ऑफ 3x को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 2x प्लस एक्स। और इसके आगे हमें क्या पता है, यहाँ तक तो हमें पता है tan ऑफ 3x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2x प्लस एक्स। और इसके आगे tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो tan ऑफ 2x प्लस tan x, 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan a। ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया tan ऑफ 3x का। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ tan ऑफ 3x। नाउ इफ़ यू सी, तो अगर मैं ये tan 3x को, अगर ये राइट हैंड साइड का पूरा डिनोमिनेटर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे tan ऑफ 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, इट इज़ इक्वल टू, बाकी क्या रह गया यहाँ पे, tan 2x प्लस tan x। हेंस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो tan 3x इंटू 1 कितना हो गया, tan 3x, मिडल साइन क्या आ गया, माइनस। नेक्स्ट tan 3x tan 2x इंटू tan x, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, इट इज़ इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। इफ़ यू सी, देखो यहाँ पे इंटीग्रल आई में हमें किसका वैल्यू चाहिए, वी रिक्वायर हियर वैल्यू ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x का हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें ये क्या करेगी, ये यहाँ पे टर्म माइनस में है, तो अगर मैं ये टर्म को RHS में लेके जाती हूँ और ये दोनों टर्म्स को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल डू हियर, tan 3x एज इट इज़, ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस tan 2x माइनस tan x, इट इज़ इक्वल टू, अगर आप ये सेकेंड टर्म RHS में लेके जाते हो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सो इट इज़ इक्वल टू tan 3x tan 2x इंटू tan x। सो ये आपको किसका वैल्यू मिल गया, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये आपको इंटीग्रल आई की ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू मिल गया। सो हेंस इंटीग्रल आई विल बिकम, इंटीग्रल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये जो है ये टर्म्स है यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो इट इज़ इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x, tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ मॉड ऑफ sec 3x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। सो 3 से डिवाइड कर दो, मिडल साइन है माइनस। tan 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ sec 2x, log ऑफ मॉड ऑफ 2x है तो sec 2x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। फाइनल आंसर है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल आई। tan 3x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec 3x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, मिडल साइन माइनस, log ऑफ मॉड ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, मिडल साइन माइनस, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसके आगे के जो क्वेश्चन है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है 3.8 के, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।